Hello, students. Yesterday I had taught you four paragraphs of the first lesson, A Girl with Basket, written by William C. Douglas. Today I am going to resume that right from paragraph 5th. I have sent you video already of the hard word meanings. Go through that and listen it. Paragraph 5. These were refugee children. When partition between India and Pakistan was decreed, hundreds of thousands of people pulled up their roots and changed their residence. 9 million people left Pakistan and came to India, driven by the fear of religious fanaticism. They were poor people to start with. They were poorer as they began their long trek. For all they could carry was a bit of food and a few belongings. Soon they were out of food. A few days after they started, they began to fall by the wayside from the weakness of hunger and died where they fell. This is paragraph 5. इसका हिंदी रूपांतरण यह है, These were refugee children. ये शरणार्थी बच्चे थे. शरणार्थी मतलब किसी दूसरे देश से किसी दूसरे देश में जाने वालों को शरणार्थी कहते हैं. ये शरणार्थी बच्चे थे. When partition India and Pakistan was decreed, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा घोषित कर दिया गया, जब ये घोषणा कर दी गई कि भारत और पाकिस्तान अब दो मुल्क होंगे, hundreds of thousands of people pulled up their roots. हजारों लाखों लोग अपने जड़ों से उखड़ गए एंड चेंज देयर रेजिडेंस, और उन्होंने अपना स्थान परिवर्तित कर लिया, अपना निवास स्थान बदल दिया. 9 million people left Pakistan and came to India, driven by the fear of religious fanaticism. फैनेटिसिज्म माने उन्माद, धार्मिक उन्माद. धर्म को लेकर के जो उन्माद होते हैं उसको अंग्रेजी में फैनेटिसिज्म कहते हैं. धार्मिक उन्माद ये बहुत बुरा होता है. धार्मिक उन्माद के कारण 90 लाख लोगों ने पाकिस्तान छोड़ा और भारत है. इसका कारण सिर्फ था धार्मिक उन्माद. They were poor people to start with. वे गरीब लोग थे जिनको नए सिरे से शुरुआत करनी थी. They were poorer as they began their long trek. और वो और गरीब हो गए जब वो जत्थों में एक देश को अपने देश छोड़कर दूसरे देश जाने को निकले. वो और भी गरीब हो गए. ट्रेक मतलब जत्था. फॉर ऑल दे कुड कैरी वॉज ए बिट ऑफ फूड. जो कुछ भी वो लेकर चल सकते थे उसमें थोड़ा भोजन था. एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, थोड़े बहुत ज़रूरत के सामान. इससे ज़्यादा वो क्या ढूंढ सकते थे. सुन दे वेयर आउट ऑफ फूड, और जल्दी ही उनके भोजन समाप्त हो गए. अ फ्यू डेज लेटर दे स्टार्टेड, कुछ दिनों बाद उन्होंने फिर से शुरू किया. They began to fall by the wayside. वे सड़कों के किनारे गिरने लगे. From the weakness of hunger, भूख के कमजोरियों के कारण वो सड़कों के किनारे गिरने लगे. And died where they fell, और मर गए जहाँ वो गिरे.
It was the paragraph 5. Now come to the paragraph 6. The children selling baskets were sons and daughters of these refugees. They or their parents or relatives had gathered in cities, setting up stalls, manufacturing simple articles, trying to make a living in markets already overcrowded. They lived in cloth and grass sheds that lined the streets. The peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives, for the annual income of an agricultural family does not exceed, on an average, $100 a year. The average unskilled laborers make 30 cents a day, or less than $2 a week. There is one meal a day: an onion, a piece of bread, a bowl of pulse with milk, perhaps a bit of goat cheese. No tea, no coffee, no fat, no sweets, no meat. $100 a year is not $2 a week. At even that small amount is hard to earn by selling baskets to people too poor to buy them. That no doubt is the reason these little children descended on me like locusts. An American an American was doubtless the most promising market they had seen. टोकरियां बेचने वाले ये बच्चे इन्हीं शरणार्थियों के पुत्र पुत्रियां थे। टोकरियां बेचने वाले ये जो बच्चे थे इन्हीं शरणार्थियों के थे। उनके माता पिता छोटे छोटे कस्बों में इकट्ठे हो गए थे। छोटी खुली दुकानें लगाकर अपनी आजीविका साधारण वस्तुएं बनाकर उनको बेचते थे। जब पहले से ही अधिक भीड़ भाड़ थी, वहाँ कुछ कमाने का प्रयत्न कर रहे थे। वे कपड़े तथा घास से बनी झोपड़ियों जो गलियों में कतारों से लगी हुई थीं, उसमें रहते थे। कि शरणार्थी जो छोटे मोटे किसान थे, जीवन भर थोड़े में जीवन निर्वाह करने में भी असमर्थ थे, परंतु अभ्यस्त थे। थोड़े में भी जीवन निर्वाह वो कर लेते थे। उनकी वार्षिक आमदनी वर्ष में $100 से अधिक नहीं होती थी। $100। $100 उस जमाने में करीब करीब 1500 रुपये सालाना होते थे। 100 रुपये से भी कम होता था। 100-125 रुपये के आसपास प्रति माह इनकी आमदनी होती थी। साधारण अकुशल मजदूर, जो बहुत कुशल मजदूर नहीं थे, साधारण मजदूर थे, मोटे काम करने वाले, वो प्रतिदिन 3 सेंट यानी 3 पैसा, उससे भी कम, 3 पैसा प्रतिदिन कमाते थे, या सप्ताह में $2 से भी कम कमाते थे। दिन में एक बार भोजन करते थे। उनके भोजन का मुख्य अंश था एक प्याज, एक रोटी, दूध के साथ एक कटोरी दाल, शायद थोड़ा सा बकरी के दूध का पनीर भी मिल जाता था उन्हें। न चाय, न कॉफ़ी, न कोई गरिष्ठ भोजन, न मिठाई, न मांस। एक वर्ष में $100 से सप्ताह में $2 भी नहीं होते थे। फिर भी इतना थोड़ा सा भी धन टोकरियां बेचकर नहीं कमाया जा सकता था। ये जो थोड़ी सी भी इनकम थी वो टोकरियों को बेचने से प्राप्त नहीं हो सकती थी।
वो खुद भी इतने गरीब थे कि इन बनी हुई टोकरियों को खरीद नहीं सकते थे। और शायद यही कारण था कि ये बच्चे मुझे देखते ही टिड्डियों की भांति मुझ पर टूट पड़े। लॉकस्ट माने टिड्डी, टिड्डियों की भांति मुझ पर टूट पड़े, क्योंकि उनकी निगाह में मैं अमेरिकन उनके लिए एक बहुत ही अच्छा बाजार था, या अमेरिकन जो मैं देखने से धनी लग रहा था उनके लिए एक आशाजनक खरीदार था। दिस वॉज द elaboration of paragraph 6, and I'll resume after this tomorrow. So let us wait for tomorrow, and please go through the lesson, a paragraph, and the hard meanings of the paragraphs. Okay, wish you all the best. See you tomorrow in next video.